Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir Commerce Section, Class 11, Subject Economics, Chapter 2, Theory of Consumer Behavior. इस चैप्टर में, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मार्शल के यूटिलिटी अप्रोच को खत्म करने के बाद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच शुरू किए थे, और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से आरजीडी एलन और हिक्स ने मार्शल की मान्यताओं की धज्जियां उड़ाते हुए एक नए कॉन्सेप्ट को दिया था, और उसके तहत उन्होंने इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के आधार पर ऑर्डिनल अप्रोच दिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। आरजीडी एलन और हिक्स के अनुसार यूटिलिटी इज टोटली अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, जो उपयोगिता है वो पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है और विचार है। दस इट कैन बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अतः यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। एंड वी कांट मेजर यूटिलिटी absolutely especially in terms of money, because the marginal utility of money, which is assumed constant by Marshall, RGD Allen and Hicks बहुत aggressively कहते हैं कि जो marginal utility of money है उसको हम constant नहीं रख सकते हैं। on the basis of law of diminishing marginal utility, the marginal utility of money cannot be constant for everyone, and thus utility cannot be measured in terms of money also, because it is a psychological concept and it can be differ from person to person. In that situation, RGD Allen and Hicks state that utility can be ordered only according to consumer preference, and for that he expressed three type of preferences, like rigid preference, in which consumer choose only one good and rigid for that choice, and in any circumstances is willing to get that particular item. That preference is known as rigid preference. Another is preference order. When a consumer develop an order of his preference according to utility of the goods is known as preference order. And another the next is indifferent preference. It means that when consumer were equally prefer two goods, then that type of preference is known as indifferent preference. After that, RGD Allen and Hicks giving some assumption, that is utility is not measurable in the form of money, and it cannot be measured. It is not a measurable concept. It can be ordered only on the basis of consumer preference. Indifference curve, for indifference curve analysis, RGD Allen and Hicks taken two tools: indifference curve and budget line or price line. What is indifference curve? Indifference curve के बारे में RGD Allen और Hicks ने कहा कि it is a path of points at which every point shows the combination of two goods which can provide equal satisfaction to the consumer. यानी तटस्थता वक्र बिंदुओं का एक पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु द्वारा दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोग प्रदर्शित होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे सकता है, और उपभोक्ता इनमें से किसी एक का चुनाव करने के बाद अन्य बिंदुओं के प्रति वो उदासीन हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि उपभोक्ता इन बिंदुओं में से किस बिंदु का चुनाव करेगा। तो इसके लिए which combination taken by a consumer, that depends upon his परचेजिंग कैपेसिटी, और उसके पॉकेट पर निर्भर करता है। और पॉकेट को या परचेजिंग कैपेसिटी को आरजीडी एलन हिक्स ने बजट लाइन कहा है या प्राइस लाइन कहा है, और ये बजट सेट से हम बनाते हैं। बजट सेट क्या है? बजट सेट इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन. It is a tabular presentation which shows the various combination of one or two goods which can be purchased by a consumer with his given income and the given prices of the goods. यानी बजट सेट जो है यह एक सारणीय प्रदर्शन है जो एक वस्तु या दो वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता अपने दिए हुए आय से और वस्तुओं के दिए हुए कीमत पर खरीद सकते हैं. इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased by a consumer with his given income at the given prices of the good. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ABCDE वेरियस कॉम्बिनेशन है. यहाँ गुड X है, गुड्स के प्राइस दिए हुए हैं, X 5 रुपये है और Y 5 रुपये है, और इनकम जिसको हम
वाई से डिनोट करते हैं। इनकम दिया हुआ है 100 रुपीज, तो वो एक कॉम्बिनेशन ले सकता है। मान लीजिए ए यहां होगा कि Y20 X0, बी यहां होगा यानी Y5 और बी Y15 और X5, फिर सी होगा जिसमें दोनों 10-10, फिर डी है 15, 5 और फिर ई है जिसमें x का 20 यूनिट बोलेगा। तो वेरियस कॉम्बिनेशन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज नोन एज बजट लाइन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज बजट लाइन। नाउ consumer equilibrium and indifference curve analysis. Under indifference curve analysis, a consumer will get equilibrium at that point where his indifference curve get tangent or coincide with his budget line. यानी तटस्थता वक्र का के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन वहां प्राप्त करेगा जहां उसका तटस्थता वक्र उसके इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट हो जाए, कॉन्साइड हो जाए, और जो बिंदु उसके बजट रेखा से टच करेगा, कॉन्साइड होगा, उस बिंदु के द्वारा प्रदर्शित वस्तुओं का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज परचेज बाय दैट कंज्यूमर एंड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ए कंज्यूमर विल गेट इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर हिज इंडिफरेंस कर्व गेट टेंजेंट और कॉन्साइड विथ हिज बजट लाइन। अब है कि इंडिफरेंस कर्व पर जहां इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है उपभोक्ता, वहां दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। फर्स्ट, at the point of equilibrium, indifference curve should be tangent or coincide with consumer's budget line. And the second, at the point of equilibrium, indifference curve must be convex to the origin. Must be convex to the origin. ये दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। तो तटस्थता वक्र के अंतर्गत उपभोक्ता वहां पे संतुलन प्राप्त करता है जहां उसकी तटस्थता वक्र उसके बजट रेखा से संस्पर्श कर जाए और उस बिंदु के द्वारा प्रदर्शित कॉम्बिनेशन क्रय कर एक उपभोक्ता संतुलन में रहता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र का ढाल और इंडिफरेंस कर्व बजट रेखा की ढाल स्लोप ऑफ, यानी एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम slope of indifference curve at the point of equilibrium, slope of indifference curve became equal to the slope of budget line. At the point of equilibrium, slope of IC became equal to slope of बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ आईपी क्या है, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम माइनस पी एक्स बाई पी वाई। बजट लाइन का स्लोप बराबर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई बटा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाई फॉर एक्स। ये हो गया आपका एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। और ये दोनों स्लोप एक दूसरे के बराबर होंगे संतुलन बिंदु पर। तो इस तरह से तटस्थता वक्र के अंतर्गत हम लोग उपभोक्ता संतुलन पढ़े हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लोप से और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे कि व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन of diminishing marginal rate of substitution. Till then, you have to be write down it in your fair notebook and also remember it because it's a very conceptual chapter and the very important concept of indifference curve and budget line. So you need to be remember and fair it in your homework notebook. Till then, take care, stay home, safe home.